Hello, subscribers, my dear students. Today, our topic is reproduction in organism. This is class 12th NCRT first chapter. Nowadays, first chapter has deleted by the CBSE, but I cover this chapter because of this chapter may included in future. Actually, in class 12 CBSE NCRT book has 16 chapter. Okay, so 3 chapters are deleted by the CBSE. So because of I have to cover all the chapters, that's why I am taking. In earlier years, a lot of questions came in NEET. That's why I am completing. So now let us start reproduction in organism. Reproduction, the process of formation of young one individual from pre-existing group of individual of an organism is called reproduction. Okay, so lifespan. If we see the lifespan, the period between birth and natural death of an organism is called lifespan. Crow, parrot has equal size. Crow lifespan is 15 years and parrot lifespan is 140 years. How much surprise this thing. Both have same body shape and size, but see the difference in the lifespan of crow and parrot. Crow lifespan is 15 years and parrot lifespan is 140 years. Mango and people are the tree, but mango lifespan is 200 years while the people lifespan is 2500 years. Okay, so we have some other examples of lifespan, like as a butterfly lifespan is 1 to 2 weeks, dog 20 to 25 years, cow 25 years, banana plant 25 years, rice plant 4 months, horse 50 years, tortoise 150 years and turtle 123 years. Mode of asexual reproduction. Actually, asexual reproduction, it is the mode of reproduction or formation of new individual from a specialized and unspecialized part of single parent with but without the formation of fusion of gamete is called asexual reproduction. तो asexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग डायरेक्ट पेरेंट बॉडी पार्ट से तैयार होते हैं. इसमें किसी तरीके का कोई गैमीट फ्यूज़न नहीं होता है. नाउ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक एज फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है. ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ asexual reproduction. Now we are taking here binary fission. The mature individual divides into two equal sized daughter individuals. Now irregular or simple in amoeba, longitudinal in यूग्लिना. लॉन्गिट्यूडनल जो फिशन होता है उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना. एग्जाम में आ सकता है नीट के अंदर कि लॉन्गिट्यूडनल फिशन का एग्जाम्पल दीजिए यूग्लिना. नाउ मल्टीपल फिशन, इट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल डॉटर by division of a parent. In amoeba, multiple fission is preceded by encystment or cyst formation. It is followed by sporulation in which a number of small amoeba called pseudopodiospores. Multiple fission is of two types, plasmotomy and strobilization. Plasmotomy, cleavage of plasmodium or multinucleated body into the multinucleate part.
Strobilization, a modification of multiple fission, is strobilization in multicellular animals like Aurelia and tapeworm. Sporulation. Now, sporulation. Spores are minute, single-celled, thin-walled propagules which have dual function of dispersal and formation of new individuals. It is common in Monera, Protista, fungi and algae. Motile spores are called zoospores. They occur in water and example is Chlamydomonas. The non-motile spores are named variously by Aplanospores, Hypnospores, Conidia. Some spores are produced exogenously, example Conidia in penicillin, while other are formed inside the sporangia, example Sporangiophore in Rhizopus. तो अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। ये जो चीज़ मैंने बोला है ये सब जो है यहाँ डिटेल में है। हम चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, सामने इजीली अवेलेबल है। इसको अगर हम जूम करेंगे तो जूम करने पर सब चीज़ मिल जाएगी। तो अभी हमने देखा यहाँ ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल हैं एसेक्सुअल के जो मैंने बताया था, जैसे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये सब हो गया। इसके बाद आता है जैसे हम देखें बडिंग। ओके, बडिंग में देखते हैं हम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दिस प्रोसेस द इंडिविजुअल ओरिजिनेट बाय बड इज कॉल्ड बडिंग। इट इज़ ऑफ टू टाइप, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस में आती है एक्सटर्नल बडिंग, द बड डेवलप एक्सटर्नली ऑन द पेरेंट, जैसे हाइड्रा। इंटरनल बर्ड और गैम्यूल अकर्स इन मोस्ट फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, इंटरनल बडिंग एंडोजीनियस। अब देखते हैं हम बडिंग के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन, ये भी एक एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ द breaking of an individual into two or more parts of Spirogyra starfish. Each fragments develop into two new individual is called regeneration. तो अगर हम देखें फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, लगभग एक जैसे हैं। जब हम प्लांट के केस में लेते हैं तो जैसे स्पायरोगायरा हो गया तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, और एनिमल्स के केस में अगर हम लेते हैं तो वो रीजनरेशन हो गया। रीजनरेशन की कैपेसिटी जैसे स्पंज है, स्पंज में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। स्पंज को जितना अगर हम कट करेंगे उतने उसके इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से लीवर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन ह्यूमन की बॉडी में ज़्यादा होती है। पावर ऑफ रीजनरेशन को हमने देखा कि हमारे नेल्स में, हेयर्स में रीजनरेशन पावर होती है। हमारी जो टीथ होते हैं इसमें भी ये 2 बार आते हैं। इसी तरीके से हमारा जो स्किन होती है उसमें भी रीजनरेशन पावर होती है। वुंडेड पोर्शन जो होता है वो रिपेयर हो जाता है, दोबारा से स्किन आ जाती है। एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें, हॉर्न्स में, हूप्स में रीजनरेशन पावर देखी गई है। लिजर्ड टेल के अंदर रीजनरेशन पावर होती है। इसी तरीके से हम देखें कि फ्रॉग का आगे का हाथ, 4 लिम्ब अगर काट दिया जाए तो दोबारा आ जाता है। स्टारफिश की आर्म आ जाती है। तो ये सब रीजनरेशन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल मेथड है, इसमें नेचुरल वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आती है रूट, जैसे टैप रूट ब्रांचेस कैन डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड एंड फॉर्म न्यू प्लांट एज guava, popular. Fleshy adventitious root vegetative propagation in sweet potato, dahlia and asparagus. इसी तरीके से हम देखें स्टेम के एग्जाम्पल, नेचुरल वेजिटेटिव में ट्यूबर डेवलप न्यू प्लांट इन द रीजन ऑफ द आई लाइक एज द पोटैटो, bulb in onion and garlic, rhizome in ginger and turmeric, sucker पाइनएप्पल एंड बनाना, ऑफसेट पिस्टिया, रनर्स ग्रास, स्टोलन स्ट्रॉबेरी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एंड लीव्स एग्जाम्पल है जिसमें ब्रायोफिलम एंड कैलन कॉन्चे।
अब आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आती है जैसे कटिंग में हम शुगर केन है या पोटैटो है उसको कट करते हैं, उसके वेजिटेटिव प्रोपेगेल वाले पार्ट कैपेबल होते हैं नए प्लांट ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद आती है लेयरिंग, जैसे जैस्मिन, चेरी एंड ग्रेप के अंदर लेयरिंग होती है। ग्राफ्टिंग मैंगो, एप्पल, पियर, रोज, पीच। और माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर जिसे कहते हैं वो भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जाम्पल है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम देखते हैं मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is the process in which new individual or young one are formed by gamete formation is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है वो गैमीट के फ्यूज़न से बनेगा। इसमें हमेशा पेरेंट दो होते हैं, जैसे फादर का स्पर्म और मदर का एग सेल आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाएगा और गैमीट फ्यूज़न से ही ऑफस्प्रिंग बन के तैयार होगा। अब इसके बाद आते हैं हम देखें गैमीट का फ्यूज़न। जैसे अगर हम देखते हैं गैमीट का फ्यूज़न, यहाँ पर हम देखें ये 3 टाइप का होता है। एक होता है आइसोगैमी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक आइसोगैमी, एक एनाइसोगैमी और एक अनदर एग्जांपल है ऊगैमी। फ्यूज़न ऑफ सिमिलर गैमीट इज कॉल्ड आइसोगैमी। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगैमी, फ्यूज़न ऑफ डिसिमिलर गैमीट्स इन साइज बिहेवियर, इसका एग्जांपल है जैसे क्लेमाइडोमोनास। और ऊगैमी, नॉन मोटाइल लार्ज एग एंड स्मॉल एक्टिव स्पर्म फ्यूज़न इज कॉल्ड ऊगैमी। इसका एग्जांपल है जैसे ह्यूमन हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, फाइकस हो गया, ये सब ऊगैमी के एग्जांपल हैं। तो अगर हम देखें कि गैमीट के फ्यूज़न है, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। होमोगैमी में तो आती है आइसोगैमी, और हेट्रोगैमिटी के अंदर दोनों आती हैं, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। इसके बाद हम देखें होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक क्या होता है। होमोथैलिक, देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होमोथैलिक, जैसे हैं म्यूकर। अब आते हैं हेट्रोथैलिक, इन द हायर ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑर्गन्स डेवलप एंड गॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेल और फीमेल आर कॉल्ड हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक में आती है जैसे हर्माफ्रोडाइट में आ गए बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल फ्लावर्स इन सेम प्लांट। ठीक, अब आते हैं बाइसेक्सुअल आर कॉल्ड मोनोशियस। ये बहुत आता है एग्जाम में, नीट में। बाइसेक्सुअल का अनदर नेम जो है मोनोशियस है। इसका मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल मीन्स 2 sexes in 1 individual. Bisexual are also called monoecious plant. Bisexual are also called monoecious plant. इसके एग्जाम्पल है जैसे कोकोनट, मेज एंड कुकरबिटा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है मोनोशियस का? यानी एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्सेस का होना, वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। अब आते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? 1 सेक्स इन 1 इंडिविजुअल, यानी मेल और फीमेल इनके अलग अलग होंगे। तो इस तरीके की जो बॉडी होती है, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं, वो डायोशियस प्लांट कहलाते हैं। यूनिसेक्सुअल आर कॉल्ड डायोशियस। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे साइकस, मेल अलग फीमेल अलग, वेलिसनेरिया, मेल अलग फीमेल अलग, डेट पाम, मेल अलग फीमेल अलग, पपाया, मेल अलग फीमेल अलग। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, तो इसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। नीट में बहुत आता है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आता है कि मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के एग्जाम्पल बताइए। फेज़ इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के फेज़ देखें। लाइफ साइकिल के जो 3 फेज़ हैं, जैसे हम देख रहे हैं जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड सेंसेंट फेज़। तो जुवेनाइल फेज़ में हम देखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ और वेजिटेटिव फेज़ may have different morphology like shape of leaves and their arrangement. अब आता है रिप्रोडक्टिव फेज़, maturation of sex organs, bamboo flowers after 48 and 100 years, Strobilanthes kunthiana flowers
कम एवरी 12 ईयर्स। ये इसके एग्जाम्पल है रिप्रोडक्टिव में। सेंसेंट फेज जो होती है ये लास्ट स्टेज होती है जिसमें डेथ से पहले की स्टेज होती है और मेटाबॉलिकली हम इनएक्टिव हो जाते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ आफ्टर गिविंग फ्रूट, दे अंडरगो सेंसेंस स्टेज एंड डाई। नियोटिनी एंड पीडोजेनेसिस क्या होता है देखें। नियोटिनी और पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड। चाइल्ड यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लार्वल स्टेज में होते हैं, दे आर नॉट एडल्ट एंड दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी लार्वल स्टेज में ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इवन इन द सेक्सुअल मैच्योर इंडिविजुअल और डेवलपमेंट of adult character by a larval forms is called neoteny। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एक्सोलोटल लार्वा ऑफ सैलामेंडर। इसके बाद हम देखें एनिमल ब्रीडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप, कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर में आते हैं कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जाम्पल में आती हैं जैसे कैटल हो गया, माइस हो गया, पॉल्ट्री हो गई, हनी बी हो गई, हनी बी क्वीन हो गई फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। सीजनल ब्रीडर में दे प्रोड्यूस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, फ्रॉग, लिजर्ड, मोस्ट बर्ड एंड डियर, ये सीजनल ब्रीडर हैं। इन प्लेसेंटल मैमल्स the female show cyclic changes in the activities of the ovaries and hormone throughout their reproductive phase। तो अब यहाँ पर जो reproductive phase है, जो साइकिल है, वो दो तरीके से डिवाइड करी गई है, menstrual cycle and estrous cycle। menstrual cycle, it is a series of cyclic changes that occurs in the ovaries of monkey, ape, human from puberty to menopause is called menstrual cycle। mensuration occurs, इसमें mensuration होती है, bleeding होती है and it is considered as a safe period। इसी तरीके से safe period मतलब ऑफस्प्रिंग नहीं होगा during the mensuration period। अब आता है estrous cycle। it is a series of cyclic change that are found in the ovaries in cow, dog, cat, horse, buffalo। in this period female has strong sex desire, नो mensuration, ब्लीडिंग नहीं होती है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए अनसेफ पीरियड। इट मीन्स प्रेगनेंसी विल सेट अप ड्यूरिंग द हीट पीरियड। तो इसी तरीके से हम देखें डियर, डियर इज़ कॉल्ड मोनोस्ट्रस। डियर इज़ कॉल्ड मोनोस्ट्रस बिकॉज डियर इज़ कॉल्ड मोनोस्ट्रस बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस ईस्ट्रस साइकिल वंस इन ए ईयर। डॉग इज़ बायोस्ट्रस experience two estrous cycle in a year। Mouse is a polystrous, many estrous cycle in a year। The cells which undergo meiosis are called myocytes, they are diploid। Gamete transfer by pollination is of two type, दो तरीके का होता है, एक होता है सेल पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। Endogamy in case of tapeworm, male gametes are transferred from one proglotid to another is called endogamy। ये हो गया सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन का मतलब ये है कि एक ही फ्लावर के एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये कहलाता है सेल पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम देखें, द pollen grains are carried to the stigma of other flower through the external factors like wind, insects and water is known as cross pollination। सेल पॉलिनेशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हम देखें, फ्यूज़न ऑफ टू कॉम्पिटेबल गैमीट्स टू फॉर्म डायप्लॉइड zygote is called fertilization। this process is called syngamy। सिन मतलब होता है टुगेदर, गैमस मतलब होता है मैरिज, syngamy। फ्यूजन इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। syngamy that occurs in outside in the body, it occurs in aquatic medium like as an algae, bony fish and amphibians। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखें, syngamy occurs inside the body of organism
like as a reptiles, birds, mammals, shark, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm are all example of internal fertilization. Embryogenesis. The process of development of embryo from zygote, the term blastogenesis is used for the development of new individual from bird fragments and other sexual propagules. In embryogenesis, zygote undergoes repeated cell division through mitosis cell division and undergo differentiation attaining specific shape, size, function. Cell differentiation occurs at a specific location, resulting in the production of different tissue, organs and organ system, and development of different external and internal structure is called morphogenesis. ये सारा हमने एक डिटेल तैयार की एम्ब्रियोजेनेसिस की, ठीक। माइटोसिस सेल डिवीजन लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बन के तैयार होती हैं। वो सब मोरुला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, ठीक है, ये सब एम्ब्रियोजेनेसिस में आती हैं एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो। अब आती है जैसे हम ओवीपेरी क्या होती है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द एग विदाउट, दोबारा सुने, ओवीपेरी, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द एग आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ओवीपेरी। जितने भी अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं वो सब ओवीपेरी फॉलो करते हैं, जैसे फ्रॉग, बर्ड्स, रेप्टाइल। इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एग की फॉर्म में मदर की बॉडी से बाहर होता है। अब आता है ओवा वीवी पेरी, इसको भी समझें। इन दिस प्रोसेस फीमेल रिटेनिंग द एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन and allowing the development of embryo inside the body but without providing any other extra nourishment as the placenta is absent, female give birth the young ones। इसका एग्जाम्पल है जैसे शार्क एंड रेटल स्नेक। मतलब समझें, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एग बनाते हैं, एग बनाने के बाद एग हैच होते हैं और उनके बच्चे फीमेल की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, और उसमें प्लेसेंटा नहीं बनता है। जब वो मैच्योर होते हैं तो फीमेल की बॉडी से बाहर आते हैं। ये कहलाता है ओवा वीवी पेरी। अब आता है वीवी पेरी। वीवी पेरी एग्जाम्पल है जैसे मैमल्स का, जिसमें ऑफस्प्रिंग प्लेसेंटल अटैचमेंट के जरिए नरिशमेंट लेते हैं और वो मैच्योर होने पर जन्म लेते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल विदाउट, दोबारा सुने, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल विद इंश्योर्ड नरिशमेंट फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो बाय फॉर्मिंग प्लेसेंटा इज कॉल्ड विविपेरी। तो ये तो हमने विविपेरी देख लिया। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, तो देखें सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में इन प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें हम देखते हैं इसके एंड प्रोडक्ट बनते हैं 2n एंड 3n। 2n का फ्यूचर जाइगोट, 3n का फ्यूचर एंडोस्पर्म है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सम चेंजेस टेक्स प्लेस, स्टिग्मा स्टाइल प्लग्ड, तो उसमें स्टिग्मा स्टाइल जो होती है वो प्लग्ड हो जाती है पॉलिनेशन हो जाने के बाद। सेकेंड, पोलन ट्यूब कैरी आउट द न्यूक्लियस इन which vegetative nucleus fuse with two polar cell and form 3n structure, and generative nucleus of pollen grain fuse with main egg cell to form zygote। ओव्यूल फॉर्म द सीड, हम देखते हैं ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाता है। ओवरी फॉर्म द फ्रूट, ओवरी फ्रूट बना लेती है। एंड ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट पील, और ओवरी वॉल जो है फ्रूट पील बना लेती है। वॉल ऑफ ओवरी फॉर्म्स पेरिकार्प, इट इज़ ऑफ टू टाइप, ड्राई और फ्लैशी। द राइपेंड ओवरी विद पेरिकार्प एंड सीड इज कॉल्ड फ्रूट। ये फ्रूट की डेफिनेशन है। द राइपेंड ओवरी विद पेरिकार्प एंड सीड इज कॉल्ड फ्रूट। अब आता है पार्थिनोजेनेसिस। अगर हम देखें, वर्जिन बर्थ कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। इट इज़ ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सिंगल अनफ्यूज्ड गैमीट। द यंग वंस रिजेंबल्स the mother in all inherited characters। Parthenogenesis discovered in animal, Charles Bonnet
Term parthenogenesis by Richard Owen. Parthenogenesis occurs in rotifers, arthropods, crustaceans, insects, lizards, birds like turkey. Parthenogenesis can be natural and artificial. तो अभी हम देखते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल. नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस मेल आर एब्सेंट. ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें केवल फीमेल होती हैं, नेचर ने मेल बनाया ही नहीं है. द यंग वंस डेवलप बाई एक्स. तो ये हैं एग्जाम्पल्स इसके. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस कम्युनिटी में मेल गॉड ने बनाया ही नहीं है. रोटिवर्स, ए व्हील एनिमल. टिफलीना ब्रह्मियाना, ए स्मॉल लिजर्ड है. लेसर्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना, ये एक लिजर्ड है. इसे हम जो है रॉक लिजर्ड भी कहते हैं. कैमिडियोफोरस स्पीसीज विप टेल लिजर्ड ऑफ यूएसए. ये है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल. इसके बाद आता है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में जो आती है हनी भी आती है. पार्थिनोजेनेसिस अकर्स विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. fertilized eggs and parthenogenetically developed the eggs give rise to different caste. In honeybee, fertilized egg form female, one fertile queen and other sterile workers, while parthenogenetically egg forms male or drones. तो हमने देखा इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है हनी बी. इसके बाद आता है पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेटिक. इन गॉल फ्लाई द लार्वा में ले एग्स विच डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली टू फॉर्म मोर लार्वा इन ल्यूवर फ्लूक. आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस देखते हैं हम. इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल बाय फिजिकल और केमिकल एजेंट. इसमें कुछ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट यूज़ किए जाते हैं. जियोगोरी पिनकस could the rabbit egg to develop parthenogenetically by temperature change and chemical agents. सबसे पहले एनिमल्स के अंदर जियोगोरी पिनकस ने रैबिट के जो एग होता है उसके साथ पार्थिनोजेनेटिकली किया था उन्होंने, टेम्परेचर को चेंज करके या केमिकल एजेंट्स में. तो हम देखते हैं इसमें कुछ फिजिकल एजेंट यूज़ किए जाते हैं जैसे हीट, कोल्ड, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक, प्रिंकलिंग बाय द निडल. एम्ब्रियो को निडल के जरिए प्रिंकल किया जाता है. तो ये हैं फिजिकल एजेंट. इसके बाद आता है केमिकल एजेंट में आते हैं कुछ केमिकल्स जैसे यूरिया, एल्केलॉइड्स, फैटी एसिड्स, इथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, चेंजेस इन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. ये सब आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल हैं. इसके बाद आते हैं इन पेनिसिलिन द स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया डेवलप exogenously in chains. Begonia leaves develop birds place of injury. Lychee and pomegranate vegetative propagation is carried out air layering by air layering. Air layering का एग्जाम्पल है लीची एंड पोमीग्रेनेट. अनार और लीची में जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एयर लेयरिंग का एग्जाम्पल है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इज उगेमस इन किस में, वॉलवॉक्स में, माउस में, ह्यूमंस में एंड ऑल. तो इसमें ऑल पर टिक लगाएंगे. इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर. ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर इज फ्रॉग, डियर, डॉग एंड माइस. तो इसमें लगाएंगे माइस पर टिक. माइस जो हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं. स्ट्रॉन्ग अर्ग ऑफ सेक्स इन नॉन प्राइमेट्स फीमेल, इसी को हम कहते हैं यूस्ट्रस साइकिल. नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकर इन किस किस में होती है, विपटेल लिजर्ड, रॉक लिजर्ड एंड टिफलीना. इस पर टिक लगाएंगे तीनों पर. इसके बाद है पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप एग्स ग्रो इनटू मेल्स इन हनी बी एंड टर्की. इसमें टिक लगाएंगे. लीफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज रिपीटेड इन, देखें 3 एग्जाम्पल हैं. एक तो ब्रायोफिलम है, कैलन कॉन्चे है और डायग्राम एक है डायग्रीमेंटिनियम.
Bryophyllum and Kellen conche. Grafting is successful in डाइकॉट प्लांट बट नॉट इन मोनोकॉट. ग्राफ्टिंग जो होती है वो मोनोकॉट में नहीं हो सकती, केवल डाइकॉट में हो सकती है. उसका कारण क्या है कि मोनोकॉट प्लांट जो हैं उसके अंदर कैम्बियम नहीं होती, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो इसीलिए ग्राफ्टिंग केवल डाइकॉट प्लांट में हो सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वाई द ग्राफ्टिंग इज़ नॉट अप्लाइड इन मोनोकॉट. बिकॉज cambium is absent and secondary growth could not be repeated. Which of the following animals can successfully reproduce without unfertilizing mitosis? इसका एग्जाम्पल है अमीबा. अब देखें यहाँ पर ये बहुत आता है. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अकर्स इन पैरामीशियम एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन अकर्स इन यूग्लिना. दोनों नीट में आ चुके हैं. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है यूग्लिना में. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट, इसका एग्जाम्पल है सकर. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाई ऑफसेट. देखें ऑफसेट के दो एग्जाम्पल हैं, एक तो वाटर हाइसिंथ है और पिस्टिया है. ये ऑफसेट के एग्जाम्पल है, ये नीट में आ चुके हैं क्वेश्चन. ए क्लोन इज जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्लोन की डेफिनेशन हो गई. बनाना इज प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय राइजोम. बनाना एग्जाम्पल है राइजोम का. टेरर ऑफ बंगाल ऑफ एन एक्वेटिक वीड इज इकॉर्निया. ये बहुत आता है नीट के अंदर. ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय. ऑफसेट जो बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? पार्थिनोकार्पी से, मियोटिक डिवीज़न से, पार्थिनोजेनेसिस से या माइटोटिक डिवीज़न से. तो हम कहेंगे माइटोटिक डिवीज़न. बहुत अच्छा पॉइंट है माइटोटिक डिवीज़न. ओके, तो ये चैप्टर तो CBSE ने इस साल हटा दिया है और हमने इस चैप्टर की कवरेज ले ली है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस उस हिसाब से देखते हुए तैयारी करनी है. हम सारे के सारे चैप्टर लेके चल रहे हैं जो कि NCERT की बुक में है. तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होगा, जो कि NCERT की बुक में, पुरानी बुक में चैप्टर 2 है और नई बुक में चैप्टर 1 है. It is not a matter of old book and new book. We will cover all the 16 chapters. Okay, so जब तक अपनी तैयारी तैयार करें अपने सब, ये जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं और जो मैं सारे ये इसमें से मैंने काफ़ी कोशिश की है सब कुछ याद करते हुए चलें. बहुत कुछ नीट के अंदर आएगा. नीट एक ऑल इंडिया बेसिस एग्ज़ाम है और MCQ क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें आएँ. और मैं आप लोगों को ये जो सारे नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स इजीली जो हैं हम जूम करके हम देख सकते हैं और मैंने डिक्टेट भी कर दिए हैं, काफ़ी हद तक समझा भी दिए हैं. ओके, तो आप लोग अपनी तैयारी करें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. और एक बात ध्यान रखें कि मेडिकल की कोचिंग करते समय आप लोगों को ये लगता है कि मेरे 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया. ठीक है, धैर्य रखना पड़ता है. कीप पेशेंस और कॉन्फिडेंस की कमी ना आने दें, कभी कमी ना आने दें. हर बार एक फुल जोश के साथ तैयारी करें. दुनिया में लोग कहेंगे, ताने मारेंगे कि 2 साल ख़राब हो गए. वो 2 साल ख़राब नहीं हुए. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती. माना कि गवर्नमेंट सीट पे MBBS नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं. प्राइवेट सीट पर हमारे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम प्राइवेट सीट पे 1 करोड़ में MBBS करें, तो कोई बात नहीं है. BMS, BDS ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जो 20 लाख में पूरे हो जाते हैं. कोई भी कर सकता है. और मेरी नज़र में तो मैं आपको सही बताऊं कि BMS भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जो इक्विवेलेंट टू MBBS है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी भी आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं. हमारी इंडियन पैथी तो BMS ही है, MBBS तो फॉरेन पैथी है. और अब ऐसा नहीं है, BMS के अंदर भी